चलो सेकंड चैप्टर करते हैं, इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, आईटीएफ कहते हैं आप लोग इसको शॉर्ट में, है ना। What we have seen about inverse functions from previous chapter, from chapter number 1, is that if there is a function fx is equal to y from set A to set B, then there exists inverse of this function such that f inverse y is equal to x from B to A for all x that belongs to A and all y that belongs to B, only if fx is bijective, right? So only if fx is bijective. So the point is, what is bijective? Bijective is like 1 1 on 2, right? 1 1 means injective function and on 2 corresponds to a surjective function, right? So any function that is injective as well as surjective, that is 1 1 on 2, is said to be a bijective function and that will have inverse. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं इनवर्स फंक्शन की, राइट। So property number 1, the domain of function becomes what? The range of its inverse, right? And range of function becomes what? It becomes the domain of the inverse of the function, right? Now see, we are talking about inverse of trigonometric functions, and we know that all trigonometric functions, they are not bijective, they are not 1 1, all of them are many one. So let us see, if I simply take sin x, then we know this formula from class 11, right? If sin theta is equal to sin alpha, then theta will have many values. It will be like this. So this you have seen, right? For example, you know sin pi by 6 is what? It is 1 by 2, and sin 5 pi by 6 is also what? It is 1 by 2, and sin, if you add 2 pi to this becomes 13 pi by 6, this is also 1 by 2, right? So we see what, for many x we have same value of y. So like if there is set A and set B, in set A we have pi by 6, 5 pi by 6, 13 pi by 6, they all map to half in set B, right? So this is an example of what? Many one function. So likewise, all trigonometric functions, be it sin x or other functions, cos x, tan x, cosec x, sec x, and cot x, they are all many one functions. Okay, so none of them is just one function in its entire domain, and therefore we are supposed to restrict the domain of these functions so that we can make these functions invertible. तो इन फंक्शंस को इन्वर्टिबल करने के लिए हमको इनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस, ऑल दी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, दे आर, ऑल ऑफ देम आर मैनी वन फंक्शंस. सो इन ऑर्डर टू मेक देम वन वन, वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन, ठीक है. लेट अस सी वन बाय वन. सो let me talk of sin x first. Okay. So recall its graph. Recall it. It's like this, right? ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है. This is like pi by 2. And here it is minus pi, minus 2 pi, and this is like minus pi by 2. ठीक है. Now see, this is sin x and it is many one. Many one क्यों है देखो,
If I draw a horizontal line here, see this horizontal line, then for this and this x, let there be x1 and x2, x1 and x2. We have same y. See, corresponding to x1 and x2, y वैल्यू क्या है, सेम है. Therefore this function is many one है. इसको आप आगे प्रोसीड करेंगे, you get many value, many such value of x for which y will remain same. ठीक है, बहुत सारे ऐसे x की वैल्यू मिल जाएंगी जिनके y क्या रहेगा, सेम रहेगा. So now you can write its domain. See, domain is what? Domain is entire x-axis, right? So all the real numbers on the x-axis. So all real numbers are the domain. And what is range? See, the maximum value is +1 and minimum value on y-axis is -1. So its range is from -1 to +1, right? Okay. So abhi, so this is manual function. What we see from the graph, it is what? It is a manual function. तो क्या हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि मैन्युअल फंक्शन है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको वन बनाना पड़ेगा, है ना. उसके लिए वी विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन. सो इफ सपोज आई restrict the domain in between these two lines, that is from -π/2 to π/2. तो हमारा ग्राफ का कितना पोर्शन मिलेगा हमें? केवल ये पोर्शन मिलेगा, राइट. अब इस पोर्शन को आप देखिए तो ये 1 1 है, ठीक है. फॉर एवरी एक्स यू विल हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, है ना. इसके लिए यहाँ पे वाई मिलेगा अकेला. फॉर दिस वन यू विल गेट अनदर वाई हियर. फॉर दिस एक्स यू विल गेट अनदर वाई हियर. So for every x, you will have a corresponding value of y. So this function, if you restrict the domain from -π/2 to π/2, this function sin x becomes 1 1. Okay, and this is onto. onto क्यों है? क्योंकि सारे x के लिए from -π/2 to π/2, you have some corresponding value in y. ठीक है, y का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा. There is no value of x for which you don't get any value of y, है ना. तो सारे x के लिए आपको y कुछ ना कुछ मिल ही रहा है. Therefore it is what? It is onto. So if I so restricted, let me write. If I restrict the domain from where? From -π/2 to π/2, my range remains same. ठीक है, मेरा range क्या रहेगा? Range is still the same, -1 to 1. And in this interval, my function, this function, see, from here to here, this function is what? It is 1 1 onto. It is 1 1 onto. And therefore it is bijective. And if it is bijective, then it is invertible, right? Invertible. So you can find inverse of this function now. Okay. So how to find it? Let us see. तो फिर इसका इनवर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है. So let me now try to plot the inverse of this function. So inverse will be defined where? It will be defined in this region, right? उसके लिए पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं. This is the coordinate plane and the domain is from -π/2 to π/2. Okay. Now see the domain. So this is for sin x, right? So for sin inverse x क्या हो जाएगा? डोमेन एंड रेंज. डोमेन एंड रेंज, इसका जो डोमेन होगा इट विल बिकम रेंज हियर, राइट. और जो इसका रेंज होगा -1 to 1, दैट विल बिकम द डोमेन. So let me mark here this -1, this is +1, domain, and range is -π/2 to π/2. Okay, so first point that I get is here. Okay, because we know what? If sin π/2 is equal to 1, that means sin inverse of 1 should be equal to π/2, right? इनवर्स का ही मतलब होता है. तो sin इनवर्स ऑफ 1, सी यहाँ पे डोमेन में x में 1 है आपका, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? π/2. ये पॉइंट मिला आपको, एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट -1 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. इफ यू वांट टू प्लॉट इट नाउ, इट विल बी लाइक दिस, एंड हियर
be like this. ठीक है. Now see, if I superimpose these two images, this one and this one, ठीक है, यदि आप इसको एक साथ ड्रॉ करना चाहो, let me draw it here. So it would be something like this. This is line y is equal to x, okay, and you will get this sort of thing. ये बिल्कुल वही है ना. If this is your sin x, then this one is what? This is sin inverse x है ना, जो हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है. ठीक है. So like this you can plot all the graphs of inverse to inverted functions and you can find out their domain and range. So we'll see one by one all of them. So let me see next one. If fx is equal to cos x, then okay, let me draw it first. Cos x is like this, and it will be repeated. So this is 0, pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and so on. This is minus pi by 2, this is minus pi, and so on. ठीक है. But again observe that this graph is many-one, right? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? We need to restrict the domain so that the graph becomes invertible. तो उसके लिए आप यहाँ पे एक vertical line draw कर लीजिए and consider this portion. So this portion, okay, that is the domain from 0 to pi only है ना. तो यहाँ पे क्या है? This function becomes 1 1 on 2. ठीक है. देखो for every x you will have a unique y है ना. For every x, suppose x is here, so you have this y. If x is here, you have this y. If x is here, you have this y. So all the domain for all these points in the domain, you have unique value of y, and therefore this is on 2 also है ना. So if I see the domain here, domain is entire real numbers and range is minus 1 to 1, like sin function. This is your minus 1, plus 1, and this is your minus 1 here. Okay. So if I restrict the domain for this interval, which one is 0 to pi, ठीक है. केवल यहाँ पे मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को. Range remains same. Range is what? It is minus 1 to 1. Then here I can define, here the function becomes what? 1 1, right? यहाँ पे 1 1 on 2 बन जाता है फंक्शन, जबकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मैक्सिमम था. ठीक है. यहाँ पे इनवर्स डिफाइन नहीं था. तो for inverse to be defined, ठीक है, for inverse to exist, we need to restrict the domain है ना. So now here the function become 1 1 on 2, and therefore this can have an inverse. ठीक है. So now it becomes invertible. So let me plot. Now the new function that I have to plot is cos inverse x. ठीक है. cos inverse x को plot करना है. So see some points we can say here. You know what? If cos 0 is 1, then cos inverse 1 is what? 0. If cos pi is minus 1, then cos inverse of minus 1 is pi, right? So we'll take help of these things. Now see, for cos inverse x, domain would be what? It would be the range of this function cos x minus 1 1, and its range would be what? The restricted domain, which is 0 to pi. So if I plot it, minus 1 to 1, so see, cos inverse of 1 is 0,
Okay, so cos inverse of 1 is what? 0, right? So 1 point you will get here only, and other point is where? Minus corresponding to -1 you have pi, right? So यहाँ पे let this is pi by 2 and this is pi. So for -1 you will have this point here, pi. Now you need to make the graph. So you see cos pi by 2 is 0, right? So cos inverse 0 is what? It is pi by 2. So this also you have to remember. So you will have one more point, and this is here. So if you plot it, it will be like this. So this is the graph for cos inverse x, okay? And if you want to verify if it is symmetrical, what tan y is equal to x, because you know the property function, any function fx and f inverse x, okay, are symmetrical about line y is equal to x. This you must have noted from chapter number 1, right? तो यदि हम इसको यहाँ पे सुपर इम्पोज करा दें, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा? 1 आपका कहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और दिस इज योर पाई बाई 2 and here somewhere you will be having pi. So if you make it, the diagram will be like this. -1 यहाँ पे कहीं रहेगा, so ये पाई से होता हुआ और ये यहाँ पे आएगा. यदि आपने एक लाइन y इक्वल टू एक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, so this line is y इक्वल टू x, so you will see these two things, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये +1 से इधर, ठीक है, यहाँ तक, they are symmetrical. Look at the black line and the red line, they are symmetrical about tan y is equal to x, ठीक है. So okay, so let us see next. So next is fx is tan x, okay, and it's domain and range, you know, domain and range. So first let us plot it. So if we plot, this is x-axis, y-axis, this point, let us draw many vertical lines at interval of pi by 2, okay. So like this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, this one is minus pi by 2, this is minus pi. इसको प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है. तो you know tan 0 is 0 and tan pi by 2 tends to infinity, right? So this sort of, and because the period is y, so it will get repeated. So all these are periodic functions, right? Like this. So look at the domain. So how it is straight along x-axis, है ना. तो सारे रियल नंबर मिल रहे हैं, कहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें, देखो, we don't get these points pi by 2, 3 pi by 2, right? So domain is what? It is all real numbers minus 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to integers, ठीक है. And range is what? They stretch in y-axis, so it is all real numbers. So range is all real numbers. Now again, the function is what? It is many one, right? If you draw a horizontal line, see horizontal line. So for all these, say this one is x1, x2, x3. For all these x, you have same y here, right? तो ये क्या हो गया? मैन वन हो गया. So we need to restrict the domain so that it becomes what? 1 1. तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? So consider this graph in between these two verticals, that is minus pi by 2 to pi by 2. यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे this function is 1 1, right? ये function 1 1 है. यहाँ पे for every you know x you will have a corresponding value of y. It will not be repeated, right? So the restricted domain is what? Minus, but see,
minus pi by 2 and pi by 2, these two lines, they will not be included क्योंकि लाइन कहीं भी टच नहीं करेंगे ग्राफ को, राइट. So you will write like this, minus pi by 2 to pi by 2, open interval, okay. And range will remain as such, वो सारा रियल नंबर रहेगा, ठीक है. So in this interval the function is 1 on 2, that is bijective, and you can find out the inverse of this function now, okay. So it is what, invertible now. Here it was what, many one. In this domain, okay, it is what, many one, we have seen. अभी क्या है कि अभी ये 1 1 on 2 हो गया है, इन्वर्टिबल हो गया है फॉर दिस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, है ना. तो विल डिफाइन इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ x, ओके, एंड दैट इज व्हाट, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x. और इसका डोमेन रेंज क्या होगा. सो इस डोमेन would be the range of this tan x, क्या है वो, all real numbers. और इसका रेंज क्या होगा, रेंज would be the restricted domain, है ना, which is minus pi by 2 to pi by 2. We can plot it also, इसको प्लॉट कर लीजिए आप. So the domain is all real numbers and range is minus pi by 2 to pi by 2. So let me write this is like minus pi by 2 and here it is pi by 2. Draw some horizontals. ओके, तो ये कैसे प्लॉट होगा, आप चाहो तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. लेट अस सी सम पॉइंट्स. यू नो tan 0 इज व्हाट, इज 0, दैट मीन tan इनवर्स 0 इज व्हाट, अगेन 0. दिस इज लाइक फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट सी tan pi by 2, that is not defined, right, it tends to where, infinity. So tan inverse, if I see infinity, it will tend to where, pi by 2. And similarly tan of minus pi by 2 tends to minus infinity, and therefore tan inverse of minus infinity will tend to minus pi by 2. So these are few points that we can consider while drawing this graph. So first one is 0 corresponding to infinity, okay, we have pi by 2. So at infinity the y this coordinate will tend to pi by 2. So we'll have a graph like this. And here at minus infinity the graph will tend to minus pi by 2. So these lines pi by 2 and minus pi by 2, they will never be touched by the graph, okay. So this is the graph for tan inverse x, or y is equal to tan inverse x. This is how. So remember it's domain and range, that is this one is important, right. So let us see next. So let me erase it. Now fx is equal to cosec x, okay. Cosec is reciprocal of sin x. Let me plot it first. So see, so let me plot sin x first, okay. So this is like sin x. Plots can be made more better, okay. See, if I draw the verticals through these points, then what is cosec x, it is the reciprocal of this graph sin x, right. So it would be like this. Here also it will go like this. तो ये क्लास 11 में देखा था आप लोगों ने, तो ये ग्राफ हो गया किसका, cosec x का. और आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या है, ये मैनी वन है ना. If you draw horizontal line, see, for all this x1, x2, x3, x4, x5, x6 and many infinite number of x will have same value of y here. y value क्या रहेगी यहाँ पे, सेम रहेगी, है ना. So for many x, for x1, x2, x3, if you have same y, so this graph is what, is many one, right. And many one functions, they don't have inverse, okay. So many one functions, they don't have inverse. So we need to do what, we need to restrict the domain of this function. So first let me write the domain and range of cosec x. So domain is
domain and range. Now domain is what? Domain is all real numbers, but there are certain points which are not included, right? See, 0 is not included. Then pi by 2 is here, and this is like pi. Pi is not included, so all multiples of pi, they will not be included. Okay, n belongs to integer here. ये हो गया डोमेन. रेंज में देखिए क्या है. See, this point is like -1 and here it is, this one is +1. So range is what? So range, this fx is the range. इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ, आई मीन दिस 1. ठीक है. सो इसकी जो मॉड वैल्यू होगी हमेशा 1 से बड़ी होगी. या आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज लाइक -∞ to 1 -1, राइट, यूनियन 1 to ∞. ये क्या हो गया? आपका रेंज हो गया, है ना. बट द पॉइंट इज दिस इज मैनी वन. This is what? Many one, and you need to make this graph 1 1 so as to make it invertible. तो उसके लिए you have to restrict the domain. ठीक है. तो restricted domain क्या हो जाएगा? सी restricted domain ना क्या हो जाएगा? restricted domain देखिए, if I consider these two parallels, which is the one that is passing through pi by 2 and the one that is passing through minus pi by 2. ओके, दिस इज minus pi by 2. इसमें देखिए जो आपका ग्राफ है, दिस ग्राफ यहाँ से इधर दिखाई पड़ रहा है हमें और ये इधर नीचे जा रहा है. तो इन दो पैरेलल्स के बीच में तो ये 1 1 है. ठीक है. फॉर एवरी एक्स यू विल हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, है ना. और ये ऑन टू भी है ना, इन इट्स रेंज. ठीक है. सो लेट अस सी, this restricted domain becomes what? It becomes minus pi by 2 to pi by 2, and these 2 points are included, but what is not included is 0. इसके बीच में 0 है. 0 देखो, 0 लाइन जो है y एक्सिस ये कहीं भी टच नहीं हो रहा है ग्राफ से. so this 0 will not be included, है ना. रेंज क्या हो जाएगा? रेंज तो वही रहेगा, which is -∞ to -1 union 1 to ∞, right? So this is the domain and this is the range, and here the function becomes what? 1 1 on 2, and therefore in this function becomes invertible, right? तो ये function यहाँ पे invertible हो गया. So let us write this inverse of this function, and this is what? Cosec inverse x. And what will be its domain and range? डोमेन क्या हो जाएगा? इसका जो रेंज है, राइट, इट विल बी, सो दिस एक्स, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और या फिर आप ये पूरा लिख लो, है ना. या इसको लिखने का एक और तरीका है क्या? -∞ to -1. दिस इज इंक्लूडेड, -1 इज इंक्लूडेड, है ना, +1 दे आर बोथ इंक्लूडेड, बट -∞ +∞ दे आर नॉट इंक्लूडेड. दिस इज 1 to ∞, राइट. और इसका रेंज क्या होगा? रेंज इज दिस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन विच इज व्हाट? minus pi by 2 to pi by 2 except point 0, राइट. अब इसको प्लॉट करना है हमें, इनवर्स फंक्शन को. तो उसको प्लॉट करने के लिए, ठीक है, दिस इज माय कोऑर्डिनेट प्लेन. रेंज है -pi by 2 to pi by 2. तो मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेता हूँ. दिस इज योर -pi by 2, दिस योर pi by 2. और डोमेन क्या है? -1 to ∞. So let this point is -1 and this point is 1. ठीक है. So ये ग्राफ कहाँ पे नहीं है? So let me see. You know, cosec. Let me write it somewhere. कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम ना. Now cosec of pi by 2 is 1. Like sin 90 is 1, so cosec 90 is also 1. So cosec inverse of 1 is what? It is pi by 2. ठीक है. तो 1 के करस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा? pi by 2. लाइकवाइज -1 करस्पॉन्डिंग आप चेक कर लो यहाँ पे. cosec of -pi by 2 is -1, so cosec inverse of -1 is -pi by 2, राइट. एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. अभी क्या है? आप जब इन्फिनिटी पे जा रहे सी, जब 0 पे आप जा रहे हो, sin 0 is what? So let me sin 0 is what? 0, right?
So cosec 0 is not defined, it tends to where infinity. So cosec inverse infinity will tend to where 0, right? समझिए, तो यदि हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो कहाँ पे टेंड करेगा 0 पे. सो दिस इज योर 0. वाई में क्या है 0 यहाँ पे है ना, एक्स दिस एक्स एक्सिस 0. ठीक है. इसका इक्वेशन होता है क्या y इक्वल टू 0. सो इफ यू गो टू इन्फिनिटी यू विल टेंड टू वेयर 0. सो योर ग्राफ इज लाइक दिस and from here also. So see, this is the graph for y equal to cosec inverse x. Okay, that is the inverse function of cosec x for this domain and range, right? तो ये this one is important है, इसका डोमेन और रेंज याद रखना आपको बहुत ही important है. ठीक है. So let's see the next one. So fx is equal to sec x and the domain and range. For domain and range you can plot first y is equal to cos x. Cos x is like this, okay, and then corresponding to these verticals you can plot sec x. Sec x is like this, do not touch this line, here it will be like this. So you will again see that this is manual function, so you need to restrict the domain of this function to make it invertible. ये 0 है, ये आपका पाई बाई 2 है और ये क्या यहाँ पे पाई है. So if I consider these two lines, this y axis and this vertical, that is x is equal to pi. So in between these two the graph is this, right? ये ग्राफ मिलेगा आपको है, and it will not touch this line. ये जो लाइन है पाई बाई 2 वाली, it will not be touched. ठीक है. तो यहाँ पे this function becomes invertible. So first let me write domain for this function sec x in general. ये क्या होगा r minus, and see these points are not there, so remove these points, pi by 2 where n belongs to integer, and range is what? Range is the same that was for cosec x, and that is what? It is like minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. ठीक है. So but the function is manual, right? See, again this is manual, you can draw horizontal lines. ठीक है. So we need to restrict this domain of this function. So restricted domain would be what? Restricted domain we have seen is what? It is from 0 to pi, both included, but what is not included is pi by 2. So you have to remove pi by 2 this point from x axis. And range is what? Range is the entire, the previous range, which is what? Minus, or you can write like this, entire real number minus minus 1 to 1. So this will be excluded here, right? So you can write like this or like this. There are many ways of writing it. Okay. So in this region, ये जो region आपने अभी define कर लिया, इसमें जो ये function है f(x) equal to sec x, it is invertible because this becomes 1 on 2. So this is now 1 on 2, and hence it is invertible. So let me write f(x) is equal to sec inverse x now. इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इसका जो होगा रेंज वही होगा है. So you can write like this, minus 1 to 1, or you can write minus infinity to minus 1 including 1 to infinity, right? And range is what? Range is the restricted domain of function sec x, that is what? 0 to pi. इसमें से आपको क्या माइनस करना है? पाई बाई 2. ठीक है. इसको like this, okay, and mark the points 0, pi, and this is pi by 2. Okay, and draw more horizontal here and one more here. Now see, cos 0 is 1, so sec 0 is also 1. So sec inverse 1 is what? 0 है ना. यहाँ पे आपको -1 और +1 भी मार्क करना पड़ेगा. -1 +1. सो एक तो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, क्योंकि
आपको पता है सेक इनवर्स 1 इज व्हाट 0 एंड सेक इनवर्स ऑफ -1 इज व्हाट इट विल बी पाई टू cos c cos 0 इज 1। तो यहाँ से हमें मिलता है क्या cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट इफ यू राइट cos पाई इट इज -1 सो cos से करस्पॉन्डिंग सेक को हमने मार्क किया है ना क्योंकि cos 0 इज 1 तो sec 0 इज ऑल्सो 1 राइट sec 0 इज ऑल्सो 1 है ना तो sec इनवर्स 1 इज ऑल्सो 0 तो ये हमने प्लॉट कर दिया है। नाउ cos पाई इज -1 so sec पाई इज व्हाट इट इज ऑल्सो -1 so sec इनवर्स ऑफ -1 इज व्हाट पाई। तो -1 करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको पाई मिलेगा ये पॉइंट राइट एंड एज सुन एज यू रीच पाई बाई 2 ठीक है तो क्या होगा इट विल टेंड टू इन्फिनिटी राइट सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर द ग्राफ विल बी लाइक दिस ठीक है क्योंकि cos पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है सो sec पाई बाई 2 विल नॉट बी डिफाइंड राइट सो sec इनवर्स पाई बाई 2 विल ऑल्सो बी सो sec इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी राइट और sec इनवर्स ऑफ नॉट डिफाइंड विल बी व्हाट इट विल बी पाई बाई 2 है ना। So see, you know what cos pi by 2 is 0 and therefore sec pi by 2 will tend to infinity and therefore sec inverse of infinity will tend to what pi by 2. So this is what we have. So when you tend to infinity the sec inverse will go to pi by 2. So this is the graph of y is equal to sec inverse x in this domain and range. So this you have to remember. Okay. Now next one we'll see fx इज इक्वल टू cot x ठीक है तो cot x का डोमेन एंड रेंज आपको पता है ना डोमेन एंड रेंज सो फर्स्ट यू कैन प्लॉट इट इफ यू प्लॉट so this is like draw some horizontals here at interval of pi by 2 okay so see cos 0 it tends to infinity right so this is like infinity and cos and cot pi by 2 is what it is 0 like because tan pi by 2 tends to infinity so this is like this and the graph repeats right the graph will repeat here also so now see this one is minimum so you need to restrict the domain and range so this is like 0 and here is pi this is pi by 2 so the domain first domain for this entire cot x function this is what all real numbers minus some points see what points 0 pi and all this so this is like n pi you can write where n belongs to integer and range is what range is all real numbers ठीक है। अब इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू मेक इट इनवर्टिबल है ना ये इनवर्टिबल नहीं है अभी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सो टू मेक इट इनवर्टिबल restricted domain आपका जो हो जाएगा सी इट इज लाइक 0 to pi ठीक है 0 to pi so this is a restricted domain है यहाँ पे this is 1 1 1 2 है and range is what range is all real numbers ठीक है सारा का सारा real number y में सारा एक्सपेंशन मिल रहा है। now when you say f inverse x which is cot inverse x so the domain becomes the range for this function right तो यहाँ का रेंज क्या हो जाएगा रेंज would be 0 to pi both not included and domain would be all real numbers domain is right now so this is your x axis this is your y axis and you have 0 to pi so let us make some horizontals here this is like pi by 2 and this is like pi ठीक है okay the domain is entire real number right and range okay so at 0 ठीक है 0 पे क्या होगा let us take some points so see you know cot 0 tends to infinity right because tan 0 tends to 0 so cot inverse infinity will tend to 0 ठीक है so cot inverse infinity here आप जाना चाहोगे तो कहाँ टेंड करेगा 0 ठीक है और वैसे ही cot pi tends to minus infinity so cot inverse of minus infinity will tend to 0 होगी तो यहाँ पे क्या होगा आपको ठीक है पाई पे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा है ना इधर पे ठीक है
and you know cot pi by 2 is 0 because tan pi by 2 is infinity, ठीक है. So cot inverse 0, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cot inverse 0 will be what, pi by 2. तो 0 को आपके pi by 2 ये पॉइंट मिलेगा. So if you plot it, the graph will be like this. Similarly it will be extended in between these two horizontals, ठीक है. So this is the plot for cot inverse x with this domain and this range. Let me tabulate. So here is the function, then here is the domain, and here is the range. So let us write it quickly. So functions are what? Sin inverse x, first one. Second is what? Cos inverse x. Third is tan inverse x. Fourth is cosec inverse x. In the order that we have studied, this is sec inverse x and this one is cot inverse x, ठीक है. sin inverse x का डोमेन हमने देखा था. So what are values that you can put here? So this is -1 to 1 and range was what? -pi by 2 to pi by 2. cos inverse के लिए -1 to 1 है डोमेन, but range is 0 to pi. So these range they are also corresponding to principal values, है ना. principal values क्या होती हैं ये हमने देख रखा है क्लास 11th में भी देख रखा है हम लोगों ने, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, है ना. और हम लोगों ने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो वहाँ भी बताया था हमने, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो वहाँ से भी थोड़ा सा हम लोग हिंट लेंगे, ठीक है, इसको करते हुए, है ना. अच्छा, tan इनवर्स x के लिए डोमेन क्या था यहाँ पे? यू कैन पुट ऑल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स, है ना, ऑल रियल नंबर्स, और यू कैन से दिस एज -∞ to +∞, ठीक है. तो tan इनवर्स x, है ना. रेंज क्या था इसका? सो रेंज वी हैड सीन इट वाज -pi by 2 to pi by 2, राइट, एंड दैट वाज ओपन इंटरवल -pi by 2 to pi by 2, ठीक है. तो cosec इनवर्स x यहाँ पे क्या था डोमेन आपका? डोमेन वाज x कैन बी एनीथिंग हुज मॉड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है. या इसको आप ऐसे लिखना चाहो, इसको लिखने का और भी बहुत सारे तरीके हैं. ऐसे लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1. या ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -1 -∞, ठीक है, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, लाइक दिस, ठीक है. तो ऐसे लिख सकते हो. और एग्जैक्टली यही चीज़ क्या होता है सेक इनवर्स में भी होता है ना. तो डोमेन फॉर कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स दे आर सेम. कॉसेक इनवर्स का रेंज कहाँ होता है ना, इसका रेंज कहाँ होता है? सो इट इज व्हाट, इट इज अगेन लाइक -pi by 2 to pi by 2, बट वन थिंग इज नॉट इंक्लूडेड. क्या? जीरो इंक्लूड नहीं होता है उसमें, है ना. सेक इनवर्स में क्या होता है? ये 0 to pi होता है, लेकिन वहाँ पे pi by 2 इंक्लूड नहीं हो पाता है, ठीक है. देन cot इनवर्स x, व्हेन यू टॉक अबाउट cot इनवर्स x, देन व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज? सो cot इनवर्स x का जो डोमेन था वो तो सारा का सारा था, लास्ट में देखा था हम लोगों ने, ठीक है, ऑल रियल नंबर, और उसको ऐसे लिख सकते हैं आप -∞, है ना. उसका रेंज हमने देखा था क्या था? 0 to pi, और दोनों ही इंक्लूड नहीं थे, ठीक है, ओपन था. सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आप निकाल पाएंगे, है ना. तो ये आपको इतना याद करके रखना है, ठीक है. और ठीक है, लेट मी सी द टाइम. कितना हो गया अभी? 8:22 हो गया. रिकॉर्डिंग में कितना हो गया? 52 मिनट्स रिकॉर्डिंग हो गया अभी. चलो कुछ टाइम और बढ़ा सकते हैं अभी, ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम और लेके चलते हैं अभी. इसको लिख लो, है ना, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यदि ये आपको नहीं याद होगा तो आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे, है ना. ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज वे हैं जहाँ पे कि हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है ना. क्यों रेस्ट्रिक्ट करा है? सो दैट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड एंड देयरफॉर the angle, ठीक है, the angle that you obtain for these functions, this should always be
फ्रॉम दिस रेंज ओनली, ठीक है। इनके बियॉन्ड आप इन फंक्शंस के लिए रेंज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? चलो फिर आगे देखते हैं। फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो से देयर आर सम फॉर्मूलाज, है ना। अच्छा, पहले कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इफ आई से फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ, सो व्हाट इज साइन इनवर्स हाफ, कैसे निकालते हैं? तो उसको ऐसे समझ सकते हो, सी इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू साइन y, राइट, साइन y, ठीक है। सो साइन इनवर्स हाफ आपको पूछा गया है, यू कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा लिख लो, ठीक है। सो यू गेट व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, द इक्विवेलेंट, आप ऐसे कहो या ऐसे कहो, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दिस थीटा, ये जो थीटा है which is supposed to be range of this inverse function, ठीक है। and this value will always exist in between minus pi by 2 to pi by 2, इसके अलावा कोई वैल्यू ये नहीं ले सकता है ना। so tell me what is this theta such that sin theta is half and this theta is in between minus pi by 2 to pi by 2, तो ये आपको पता है कि थीटा क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है, राइट, pi by 6 है ना। so likewise you can find out the values. if I say find sin inverse of minus half, क्या होगा बताओ? तो पहले हमेशा कैसे सोचना है, पहले पॉजिटिव वाला सोचना है, माइनस 5/6। हाँ, पहले पॉजिटिव वाला सोचना है, ठीक है। पहले माइनस को भूल जाओ, है ना। तो क्या सोचो, या ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो y क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पे आप माइनस पाई बाई 6 रखोगे, और माइनस पाई बाई 6 को देखना है कि कन्फर्म होना चाहिए कि इसके अंदर है ना, ये जरूरी है। तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के अंदर ही है माइनस पाई बाई 6, सो दिस इज करेक्ट। नाउ इफ आई से व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, टेल मी, हु विल टेल, ट्राई टेल मी। माइनस 5/3। हाँ, द मोमेंट यू से माइनस पाई बाई 3, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों? कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो रिकॉल करो, वो 0 टू पाई होता है, ठीक है। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड पाई, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब आपने फिर गलत कर दिया, ठीक है। तो कैसे करोगे फिर, कैसे करोगे फिर? आपको पहले पॉजिटिव सोचना है। कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, 60 डिग्री, है ना। कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, तो ऐसे देख लो, कॉस इनवर्स हाफ सोच लो पहले, है ना। लेट दिस एंगल इज थीटा, सो कॉस थीटा इज व्हाट, हाफ, सो थीटा इज व्हाट, पाई बाई 3। कॉस 60 तो हाफ होता है, पता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस हाफ है ना, प्लस हाफ तो है नहीं। और आपको लाना है कहाँ से, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। 0 से पाई, 0 से पाई कहाँ है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, और ये क्या है, पाई है। इसका मतलब ये दो क्वाड्रेंट्स जो हैं यही पे एंगल आपके हो सकते हैं, ठीक है। आपका माइनस तो हो ही नहीं सकता, माइनस मतलब इधर आ जाना, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे तो कॉस इनवर्स आएगा ही नहीं। तो जो माइनस पाई बाई 3 बोल रहा है गलत बोल रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव नहीं है ना, पॉजिटिव होता तो पहले क्वाड्रेंट में जाता, नेगेटिव है, इसका मतलब कहाँ आएगा, अभी दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको पता है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है एंगल का, ठीक है। इफ आई राइट कॉस थीटा इज हाफ, सो व्हाट इज दैट थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट जिसकी वैल्यू इज माइनस हाफ, बताओ ऐसा थीटा, 2π/3। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ पे कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये फर्स्ट पॉइंट में ही मिलेगा आपको, है ना। यदि मैं यहाँ पे माइनस हाफ कर दूँ तो मुझे थीटा कहाँ चाहिए, फिर सेकंड पॉइंट में चाहिए, है ना। तो माइनस हाफ यहाँ पे कौन सा ऐसा एंगल होगा, तो आपको पता है कि दैट इज 2π/3, सो योर आंसर इज व्हाट हियर, इट शुड बी 2π/3, राइट। सो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज
2π/3। यदि मैं पूछता आपसे क्लास 11th में कि cos 2π/3 क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं दिस इज cos पाई माइनस π/3, दिस इज इक्वल टू, सिंस cos पाई माइनस हो रहा है ना, तो ये दूसरे में आ रहा है, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, तो आप माइनस लिखते हैं, माइनस cos π/3, माइनस cos π/3 इज व्हाट, इट इज हाफ, राइट। सो माइनस हाफ मिल जाता है आपको, तो cos 2π/3 आपको माइनस हाफ मिल रहा है, इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज व्हाट, 2π/3। बात समझ आ रही है सबके? Yes. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने देखा था प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए। एक चीज़ सीख लो, जब भी रेंज मिलता है इनवर्स फंक्शन में, ठीक है, तो वो हमेशा या तो पहले क्वाड्रेंट मिलता है, या दूसरे क्वाड्रेंट में मिलता है, या चौथे मिलता है ना, कभी भी वो तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं मिलता है, पहली बात, ठीक है भाई। तो कभी भी आपको जो थीटा मिलेगा, है ना, ठीक है, तो वो कभी भी आपको माइनस दिस लाइक व्हाट दिस π/2 पाई टू 3π/2, इसके बीच में आपको कभी भी 3π/2, आपको पाई टू 3π/2 आपको कभी भी एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है, या तो यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा, और या फिर यहाँ मिलेगा, इन तीनों क्वाड्रेंट में कौन मिलता है ना, पहली बात तो ये जान लो, ठीक है भाई। उसके बाद जान लो यदि पहले क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू थीटा की थीटा रहेगी, ये दूसरे में है तो उसकी वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा। पहले आप पॉजिटिव वाला देख लो, जैसे मैंने अभी पूछा था कॉस इनवर्स माइनस हाफ, देखो कैसे सोचते हैं ना, तो पहले पॉजिटिव वाला सोचो, ठीक है, तो पहले सोचना क्या है आपको, कॉस इनवर्स हाफ सोचना है, और ये क्या मिल जाएगा आपको π/3। अब देखना है कि ये माइनस हाफ है, ठीक है, माइनस हाफ है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ होता है कॉस, इसमें होता है सेकंड में, देखो पहले में कॉस नेगेटिव नहीं होता, चौथे में कॉस नेगेटिव नहीं होता, कहाँ होता है, दूसरे में होता है, राइट। इफ यू रिमेंबर, सो एड शुगर टू कॉफी, है ना, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव, इसमें तो आना ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में आना ही नहीं है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आपकी आई है पहले स्टेप में, पॉजिटिव सोच के जो भी आई है, सेकेंड में निकालना है तो पाई माइनस करना पड़ेगा उसको, तो पाई माइनस π/3 करोगे तो आपका आंसर सीधे आएगा 2π/3, दिस योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू डायरेक्टली, ठीक है, पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, फिर यहाँ देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, नेगेटिव है तो कहाँ है, ठीक है, उसके बाद फिर यदि दूसरे में आ रहा है तो पाई माइनस थीटा लिखना है, यदि चौथे में आता तब एंगल क्या होता आपका माइनस थीटा। तो ये आपको याद रखना है, पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले क्वाड्रेंट में है तो थीटा रहेगा, दूसरे में है तो पाई माइनस थीटा रहेगा, और तीसरे में है, तीसरे में तो होगा ही नहीं, और चौथे में है तो माइनस थीटा रहेगा, ठीक है, दिस इज क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर एंगल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। सो लेट मी आस्क सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ से -√3/2, देखें कौन बता पाता है। -π/3। एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज -π/3। क्यों होगा ऐसा, देखो यहाँ सोचो पहले, है ना, कि माइनस है तो पहले पॉजिटिव वाला सोच लो, साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, ये एंगल आपका होता है क्या, π/3 होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद पूछा गया नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब है कि साइन आप इसमें जा नहीं सकते, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ जा नहीं सकते, तो फिर क्या ये आपको अलाउ ही नहीं करता है यहाँ पे आने के लिए, तो क्या बचता है फिर, केवल चौथा क्वाड्रेंट, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या कहा है थीटा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस थीटा, तो आपका आंसर इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, माइनस ऑफ दिस आंसर, ठीक है, ऐसे सोचो, है ना। और या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई आपका जो भी आंसर आ रहा है ना, ये कंफर्म करना है कि साइन इनवर्स थीटा के रेंज, साइन इनवर्स एक्स के रेंज में है कि नहीं, ठीक है, इसका रेंज मैंने आपको बता दिया था क्या होता है -π/2 to π/2, तो आपको चेक करना है
कि ये जो भी आपका आंसर आ रहा है वो इसके अंदर है कि नहीं, यदि है तो फिर आपका आंसर सही है ना। सो प्रिंसिपल वैल्यू जो एंगल होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए हमेशा कि वो या तो जो वैल्यू आएगा वो या तो 0 to पाई रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव में रहेगा तो, और या फिर क्या रहेगा, 0 से नीचे इधर आएगा तो क्या होगा, -π/2, ठीक है, -π/2 to 0 होगा, ठीक है, और फिर 0 से पाई तक मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से आपका सीधे कह सकते हो आप -π/2 to पाई, है ना, यहाँ तक की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई, इस तरीके से, है ना। सो जब आप पहले और दूसरे में मेजर करते हैं तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस रखते हैं एंगल का, और जब आप चौथे पॉइंट में आते हैं तो आपका हमेशा सेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है ना। एंड दैट इज हाउ यू असाइन you know that these signs, like this one is positive sign for anti-clockwise and negative sign for clockwise, ठीक है। तो लेट मी सी, मैं जैसा कहूँ tan इनवर्स ऑफ -1, व्हाट इज दिस, लेट मी सी, कौन बताता है। So -π/4. गुड, -π/4, tan इनवर्स 1 सोच लो, है ना। पहले सोचो कि tan θ 1 कब होता है, थीटा इक्वल टू π/4 पे, है ना, पहले ये सोचना है। tan θ इक्वल टू 1 है, इसका मतलब tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा है, तो थीटा क्या आ गया, π/4, तो ये क्या आ गया आपका, π/4 आ गया। पहली बात तो ये सोचनी है, ठीक है। उसके बाद सोचना है कि भाई ये यहाँ पे तो नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं पहले में, है ना, दूसरे में, और ये है आपका, यहाँ पे आप कुछ जान नहीं सकते हैं, और ये है आपका, ठीक है, चौथा वाला, है ना। तो अब यदि आप यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको tan नेगेटिव मिल सकता है भाई, यहाँ पे आपको tan नेगेटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है केवल, कॉस tan सब नेगेटिव होता है। यदि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, एंगल में बताया था पाई माइनस थीटा, राइट, तो थीटा आपका π/4 हो गया, तो पाई माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3π/4 मिल जाएगा, है ना। लेकिन देखो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स x, है ना, इसका रेंज हमने क्या बताया था, इसका रेंज याद करो, तो बताया था -π/2 to π/2, ये इसका रेंज बताया था, है ना। पीछे देखो पलट के पन्ने अपने, ठीक है। तो -π/2 to π/2 में तो ये 3π/4 है नहीं, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि गड़बड़ हो गया फिर, ठीक है। तो फिर tan और कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है tan, तो यहाँ पे यदि आपका π/4 है थीटा, तो आप इसमें आओगे तो क्या हो जाएगा, -π/4। इसको देखो जरा, ये लाइक कर रहा है कि नहीं, इसमें बिल्कुल लाइक कर रहा है, -π/2 to π/2 के अंदर है, इसका मतलब tan इनवर्स -1 क्या होगा, tan इनवर्स -1 इज -π/4। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -1, वे यहाँ भी सोचेंगे, यहाँ भी सोचेंगे, लिखेंगे 3π/4 एंड -π/4, फिर बोलेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये आंसर हो गया, है ना। तो आपका तरीका है, कैसे सोच सकते हो, है ना। बेस्ट तरीका ये कि आप पॉजिटिव वाला सोचो, थीटा निकाल लो, फिर देखो कि ये नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ जा सकता है ना, और जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे वैल्यू निकाल के देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या ये इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, आपका जो भी वैल्यू आना चाहिए वो इसके रेंज के साथ कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू कंफर्म विद द रेंज, यदि आप रेंज के साथ कंफर्म नहीं करेंगे फिर गड़बड़ है। अगला बताओ, कॉट इनवर्स ऑफ -√3 क्या होगा बताओ। बताओ। So -π/6. -π/6, कॉट का रेंज क्या होता है बताओ।
कॉट का रेंज देखो जरा, कॉट इनवर्स का। जीरो टू फाइव। तो नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? यदि आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो आप x यहाँ पे क्या है आपका, ये कॉट इनवर्स है, राइट। तो यदि आपका y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है तो आप x कुछ भी रखो, y तो अपने रेंज बना चाहिए ना। और रेंज क्या है इसका? 0 to पाई, ओपन इंटरवल हमने देख रखा है। Pi by 6. पाई बाई 6। Pi by 6. Yes. Yes. सब लोग ऐसा सोचते हो? अच्छा, यदि मैं ऐसे लिखता कॉट इनवर्स पॉजिटिव लेता मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे रखता x या y या थीटा कुछ भी, ठीक है, तो क्या हो जाता? कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा क्या आता बताओ यहाँ पे? π/6, राइट। ठीक है भाई, जो कॉट थीटा √3 है, टेन थीटा 1/√3 है, थीटा क्या होगा? π/6। तो ये तो पॉजिटिव के लिए है ना भाई, मैंने तो नेगेटिव पूछ रखा है ना। तो π/6 आपका ये पहला कोएरेंट है, ठीक है, पहला कोएरेंट है। यहाँ पे π/6, ठीक है, इसमें आएगा, थीटा π/6 इसमें आएगा। तो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे तो सारा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दे आर ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे तो नेगेटिव मैंने पूछ रखा है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जा नहीं सकता, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं आ सकते क्योंकि रेंज क्या है इसका? पॉजिटिव, आप यहाँ नहीं आ सकते। फिर बचता क्या है यहाँ पे आना? थोड़ा सोचो, रेंज क्या है इसका? 0 to पाई, यानी कॉट जो है आपका, कॉट इनवर्स, वो कहाँ रहेगा? या तो इसमें रहेगा, ठीक है, और या तो इसमें रहेगा, नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि रेंज इसका अलाउ नहीं करता नेगेटिव होना। थर्ड आपको अलाउड है ही नहीं, है ना। तो क्या बचा आपके पास? या तो आप इसमें जाओ या तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर नेगेटिव है तो क्या बचता है आपके पास? ही बचता है, केवल यहाँ पे चेक करना। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ पे अलाउड होता तो माइनस थीटा होता, जो तुमने गलती कर दिया -π/6 लिख के। -π/6 तो लिखा आपने, लेकिन अलाउड ही नहीं है, उसका रेंज ही नहीं है वहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर? पाई माइनस थीटा, राइट। थीटा क्या है? π/6। सो आंसर इज व्हाट? 5π/6। क्लियर है भाई? बताओ, इनवर्स Yes. -1/√3 ये क्या होगा बताओ जरा? So root, so 3 pi by 4. 3π/4। इतना भयानक आंसर कहाँ से निकाल के ला रहा? भयानक आंसर कहाँ से? -π/6। So minus pi by 6. चलो लेट्स सी, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/√3 सोचो पहले, क्या होगा वो? π/6 होगा। पहले दिमाग में है ना, फटाफट मार चाहिए, पहले पॉजिटिव वाला सोचो, ठीक है। tan इनवर्स 1/√3 इज व्हाट? इट इज π/6, ठीक है, पहले दिमाग में चलना चाहिए, है ना। उसके बाद tan आपको देखना है नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पे जाएगा आपका? नेगेटिव आपका यहाँ पे हो नहीं सकता, ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स का रेंज याद होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जो मैंने टेबल बनाया था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको रेंज पता होना चाहिए ना। तो tan इनवर्स का रेंज हमने देखा था, कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? -π। -π/2। ओके, तो इसका मतलब इसमें नहीं जा सकता, फिर
क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो पाई बाई 2 से पाई तक होता है ना, दूसरा वाला पाई बाई 2 से बड़ा होता है, ये क्या है पाई बाई 2 से छोटा है। तो पहले में हो नहीं सकता, पॉजिटिव होता तो पहले में होता, तो फिर कहाँ पे है ये, चौथे वाले में। इसका मतलब चौथे में क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है माइनस थीटा होता है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाए पाई बाई 6 है, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, राइट। सो दिस इज इट, है ना। इसको और आसान करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको लिख लो। बहुत सारे सेट ऑफ फॉर्मूलाज होंगे, मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। सी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप सीधे कर सकते हो। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यू कैन प्रूव ऑल दिस। ठीक है, फॉर्मूलाज है ना। जैसे इसको प्रूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज थीटा। ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो एक्स क्या हो गया यहाँ से, दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, सो थीटा इज व्हाट माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। So see theta we had started from this side and theta we reached this side. Okay. So this is how you can prove it. If you want to prove this one, you can also prove this thing. See, cos inverse of minus x is equal to इसको theta मान लीजिए चलो. So what happens? Minus x becomes cos theta, right? So x becomes what? X is minus cos theta, and minus cos theta can be written as cos of pi minus theta. And second quadrant cos is negative, right? Now take cos to this side. Cos inverse x is equal to pi minus theta, and therefore theta would be what? Pi minus cos inverse x. See, theta we started from this side and we reached finally on this side. So likewise you can prove for. Let me write the formulas first. So tan inverse of minus x is, this is minus tan inverse x. Then cosec inverse of minus x is minus of cosec inverse x. Then sec inverse of minus x is what? It is pi minus sec inverse x. And last cot inverse of minus x is again pi minus cot inverse x. तो यदि आपको नेगेटिव वैल्यूज का इनवर्स निकालना हो तो आप पॉजिटिव वाला सोचो, ठीक है, और इन फॉर्मूला की मदद से आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले कराया था क्या, if cos इनवर्स इज माइनस हाफ, ठीक है, तो इसको मैंने कहा क्या कि पहले आप पॉजिटिव सोचो, फिर सोचो किस क्वाड्रेंट में होगा, है ना, और उसके हिसाब से जो भी आपका थीटा अलाई करेगा इसके रेंज में वो आप रिपोर्ट करो, है ना। या यहाँ पे आप देखो cos इनवर्स माइनस पाई माइनस cos इनवर्स, तो यहाँ पे आप इसको पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। cos इनवर्स इज ऑफ हाफ इज व्हाट इज पाई बाई 3, सो पाई माइनस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3। तो ये आपको यूजिंग फॉर्मूला ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू हैव टू एंड देन some more we had done tan inverse minus 1 we had done, so tan inverse minus 1, see tan inverse minus is what minus tan inverse, यहाँ क्या हो जाएगा minus tan inverse 1, और tan inverse 1 is 145 degree, that is 5/4, so you directly get this